Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum. I am Muhammad Vikas Azza and I am going to deliver lecture number 7, in which we study about and discuss about charging and discharging of a capacitor. So, what is capacitor? Capacitor is a device which is used to store electrical charges. We use capacitor in our daily life in different electronic devices such as wristwatches and in laptops, as well as in different electronic gadgets, remote controls, etc. So now, first of all, we work on a charging capability of a capacitor. How a capacitor is charged. In this case means in charging of a capacitor, we see diagram which is represented in step number 2. First of all, we build potential difference, and by closing the switch and connect it to the upper circuit. Because of this, a battery of a voltage V start charging the capacitor of a capacitance C through resistor R. In a second step, the charge build up gradually on the plates in the maximum value of Q naught. So the next point is this: we consider a time is equal to 0. The charge on a capacitor is also become equal to 0. After time t, the potential is built along plates of a capacitor. It repels more charge than arriving, which cause current drop as a charge on a plate increases. In the next step, or in the next point, charging will stop when a potential energy of a capacitor become equal to the EMF of the battery. Charging process is calculated by this equation, which is seen as Q is equal to Q naught 1 minus epsilon naught minus T power RC. So this is the basic equation to calculate the this is the basic equation to calculate charging of a capacitor. So in the next step, we discuss about the value of E, as well as E is a constant and its value is a 2.7182. shows graph between time and charging or charges. So according to this graph, when a Q is equal to 0 at a time t is equal to 0, which increase gradually maximum Q value. So in the next step number 2, the diagram as well as the graph is represented here. A large RC means the capacitance is increases, the charges are increases at a large resistance and a capacitance, and at a small resistance and a capacitance the charging decreases. So in step number 3, we will discuss about the mathematical expression, as well as first of all we describe about the time constant. The time constant is the duration of a time for the capacitor in which 63.2% of its maximum value charge is deposited on the plate. Q is equal to Q naught bracket 1 minus epsilon naught minus T power RC bracket closed. So this expression is already given in a previous step number 1 explanation. So first of all, we consider T is equal to RC and put the value of a T. We cut the value of RC by RC's, we get a E power minus 1, and by calculating 1 over E, that is equal to 1 over 2.718. So 1 minus 1 over 2.718 becomes equal to 2.718 minus 1 over 2.718, that is equivalent to 0.632. So we multiplied this 0.632 with 100 as well as divided it with the 100 seconds. So we get a percentage and time in seconds is 63.2% Q over Q naught. So this is the percentage time seconds for to charge a capacitor. इन उर्दू हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच को क्लोज़ करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अपर सर्किट के अंदर, और वो चार्जिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी कैपेसिटेंस के अंदर रहते हुए और रेजिस्टेंस के अंदर रहते हुए, ठीक है, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के दरमियान। अब इससे क्या होगा कि दूसरे स्टेप के अंदर हम ये जो चार्ज जो होगा ना बिल्ट होगा ग्रेजुअली और प्लेट्स के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जब टाइम ज़ीरो है, थर्ड स्टेप के अंदर ये बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली चार्ज भी ज़ीरो है। लेकिन जब उसके अंदर टाइम टी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्लेट्स के लॉन्ग चार्जेस रिपेल करना शुरू करते हैं और प्लेट्स के अंदर चार्जेस स्टोर होना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कैपेसिटेंस लेवल इंक्रीज़ कर जाता है और चार्जिंग लेवल इंक्रीज़ कर जाता है।
हमने देखा है कि जी हमारे मोबाइल एक टाइम आता है कि जी 100% चार्ज करके बंद हो जाती है चार्जिंग। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जो बैटरी की ईएमएफ है ना, वो बराबर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की के। ठीक है, मोबाइल के अंदर कैपेसिटर भी लगा होता है और एट अ टाइम क्या कहते हैं, बैटरी भी होती है। जब वो दोनों बराबर हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। अब ये जो चार्जिंग प्रोसेस है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें फार्मूला दिया हुआ Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये चार्जिंग का फार्मूला है। अब इसके अंदर जो E है ना, वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 2.7182 होती है। हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बना देते हैं टी और चार्ज के दरमियान। जब Q ज़ीरो होता है, अब जब Q ज़ीरो होता है तो टाइम भी ज़ीरो है। मतलब जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो है तो Q ऑटोमेटिकली ज़ीरो है। लेकिन जब टाइम T समथिंग है तो फिर चार्ज मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर इसकी डायग्राम बनाई हुई है। ये आपने लाजमी बनानी है पेपर के अंदर। और इसके अंदर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है टी और क्यू के दरमियान। टी को एक्स एक्सिस पे ले लिया, टी टाइम है और क्यू ऊपर से चार्जेस हैं कि जी कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर चार्जिंग कैपेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा कम उसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगी उतना कम उसके अंदर चार्जिंग होगी। ठीक है, एक कैपेसिटर के अंदर। अब अगली स्लाइड है इसकी, सॉरी स्लाइड नहीं, स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 के अंदर वो टाइम कांस्टेंट लेता है। ठीक है, ये एक ड्यूरेशन है कि जब कैपेसिटर इतने इतने परसेंट टाइम के ऊपर चार्ज हो जाता है, मैक्सिमम उसके अंदर चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। हम क्या कहते हैं, हम एक्सप्लेनेशन के अंदर वो जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था चार्जिंग के लिए, वो उठाते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ई ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो टी है ना इसके ऊपर, उसको आर सी के बराबर रख देता हूँ और इसको पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर सी ओवर आर सी। आर सी से कट गया तो ऊपर वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर -1। ई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताई थी, दैट इज इक्वल टू 2.7182। तो मैं क्या करूँगा, ई को नीचे ले जाऊँगा, -1 है तो वो हो जाएगी 1/2.7182। इसको वो मल्टीप्लाई करेंगे और -1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 0.632 आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में टाइम आ जाएगा। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया Q/Q0 63.2%। और ये ही बेसिकली ग्राफ रिप्रेजेंट करता है चार्ज रीचेज सूनर व्हेन टाइम कांस्टेंट बिकम स्मॉल। और चार्ज मतलब इतना रीच करता है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। देखो, हर टाइम तो हम अपने मोबाइल को या अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वायर के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चार्ज हो गया, हमने चार्जर उतार दिया, अब वो ऐसा ऐसा मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। ऐसा ऐसा उसके अंदर से चार्ज ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो इतने परसेंट बैटरी रहेगी, इतने परसेंट बैटरी रहेगी, तो वो डिस्चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर भी हम स्विच को क्लोज़ करते हैं और जो चार्ज होता है ना पॉजिटिव Q राइट प्लेट के ऊपर, वो फ्लो करता है रेजिस्टेंस की तरफ और न्यूट्रलाइज कर देता है चार्ज Q को लेफ़्ट प्लेट के ऊपर। अब इसके अंदर भी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है तो तब डिस्चार्जिंग भी ज़ीरो होती है, लेकिन जब टाइम टी होता है तो फिर इसके अंदर डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका एक्सप्रेशन वो इस तरह दे रहा है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। फिर आगे बात करता हूँ, इसके अंदर जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो डिस्चार्जिंग नहीं होगी, लेकिन जब वो t इज इक्वल टू आर सी होगा तो वो आर सी से कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इसके अंदर जो बेसिक ई की वैल्यू होगी ना वो 0.367 होगी। ठीक है, -1 ई की पावर -1 वो ये बनेगी 0.367 और ये Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 0.367 ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगेन वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड्स, तो मेरे पास 36.7% टाइम के अंदर एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर कैसे ये 0.367 आया। देखो 1 आवर ई की पावर क्या थी 2.718, तो वो माइनस में थी तो वो 1 मैंने क्या किया, इसको मैंने डायरेक्ट 1 आवर 2.7
1 8 लगाया, इसके अंदर मैंने 1 माइनस नहीं किया, ठीक है। वो प्रीवियस एक्सप्रेशन के अंदर 1 माइनस ई की पावर टी की ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी था, या ई की पावर -1 था, तो वो बन जाता था 1 माइनस 1 ओवर 2.718, और 2.718 जाके मल्टीप्लाई होता था, फिर -1 होता था। लेकिन इधर -1 है ही नहीं है। अगर आप प्रीवियस एक्सप्रेशन देखो, इधर सिर्फ क्या है, ई की पावर -t और आर सी और मल्टीप्लाई बाय क्यू के साथ हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.367 आएगी। तो इस तरीके से हम इसकी भी डिस्चार्जिंग टाइम परसेंटेज रेट निकाल सकते हैं, दैट इज़ 36.7%। अब इसकी डिस्चार्जिंग की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब आ जाते हैं डिस्चार्जिंग की एप्लीकेशन के ऊपर, जो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग एप्लीकेशन, दैट इज़ अ कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निटेशन। ये क्या है? कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निटेशन, CDI इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक इग्निटेशन सिस्टम which is widely used in motorcycles, lawn mowers, chainsaws, small engine, turbines, powered aircrafts and some cars। ये इसकी एप्लीकेशन है जी। यहाँ पे ये CDI यूज़ होता है। अब ये क्या करता है? बेसिकली इट इज़ यूज टू डेवलप एंड टू ओवरकम लॉन्ग चार्जिंग टाइम, मतलब ज़्यादा चार्जिंग टाइम को ये ओवरकम करता है। ये विद हाई इंडक्टेंस कॉयल, एक हाई इंडक्टेंस कॉयल को यूज़ करते हुए, यूज़ इन इंडक्टिव इग्निटेशन सिस्टम, इंडक्टिव इग्निटेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। इंडक्शन आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10th के AC जनरेटर के चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा इंडक्शन का, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। इस साल भी आप पढ़ेंगे AC सर्किट्स के अंदर, बल्कि उससे पहले भी आप पढ़ लेंगे। और ये बेसिकली क्या करता है, इट कैन इन स्पार्क मच स्ट्रॉन्गर, और ये स्पार्क पैदा करता है, और इसलिए ये यूज़ करते हैं। इसको आम सादा अल्फाज में प्लग भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।